السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سیشن میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ سفر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور سمجھنے کا طے کر رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے، کہ جہاں سے ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں جانا، ان کے والدین کے بارے میں جانا۔ اس کے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے شکم میں مطلب پیٹ میں آئے تب کی مبارک باتیں سمجھی۔ اس کے بعد جب پیدا ہوئے تب کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، یہ سنا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان رہے ہیں، ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ وہ کیسے مبارک لمحات تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے کن لمحات میں نبیوں کے سردار کو ہمارے بیچ میں پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کا موقع عطا فرمایا۔ تو اب ہم جو بہت ہی مبارک سفر سن رہے ہیں وہ ہے سفر معراج۔ زمین سے لے کر کس طرح سے مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک براق پر سفر ہوا، اور اس کے بعد سے کس طرح سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ دکھایا گیا، اور پھر کیسے رب سے ملاقات ہوئی، یہ جاننے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو درودوں کے نغمے زبان پر جاری رکھیے، درود پاک پڑھتے جائیے، اور اپنی جو بھی دعائیں ہیں دل میں وہ بھی اللہ سے کرتے جائیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، اس وقت فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت دلوں پر سکینہ طاری ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ سکون اسی لیے ہوتا ہے کہ فرشتوں کی بھی محفل ہوتی ہے، فرشتے جو ہے وہ آسمان تک لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم نے پچھلے سیشن میں کیا سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف رواں دوا ہے، اور انہیں یہ سارے معاملات بھی دکھائے جا رہے تھے کہ کس طرح لوگوں پر عذاب ہوا تھا، کس طرح سود کھانے والوں کا انجام تھا، کس طرح نماز چھوڑنے والوں کا انجام تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، براق پر سے وہ جنتی جانور جو جنتی گھوڑا جیسے تھا، کہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا گدھے سے، اور وہ بہت ہی خوبصورت جانور تھا۔ سوچو تو صحیح، وہ منظر ایک اپنے نگاہوں کے سامنے لاؤ کہ کیا خوبصورت رات تھی، کیا خوبصورت منظر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے ملاقات کے لیے نکل رہے ہیں۔ زمین پر چلنے والے بشر اللہ سے، بندے کی ملاقات اپنے معبود سے ہے، خالق سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچے تو صحیح یہ کیسا مبارک ماحول ہے۔ اور اس سے ہمیں ایک چیز کیا سمجھ میں آ رہی ہے، آپ لوگوں نے غور کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سفر دن کو نہیں کرایا گیا، یہ رات کو کرایا گیا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہمیں بھی اپنے رب کی قریب سے قریب ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی راتیں دی ہے۔ ہم بھی اپنے اللہ کے قریب ہونے کا موقع اگر چاہتے ہیں تو رات کو جب ساری مخلوق سو جاتی ہے، اس وقت جب ہماری آنکھ کھل جائے تو ہم بھی وضو کر کر مصلی پر آ جائیں، کیونکہ دیکھو تو صحیح یہ سفر رات کو کرایا گیا۔ رات کے وقت
सोचो वो कैसा नूरानी लम्हात होंगे कि फरिश्ते आ रहे हैं। और यहाँ पर जब मस्जिद अक्सा में पहुंची है सवारी, पर यहाँ पे मैं वो पॉइंट क्लियर कर दूं कि आप लोग भी एक इरादा करें कि जब भी हमारी आँख खुले और हम तहज्जुद के लिए उठे तो ये तसव्वुर करें कि मेराज जो है, ये मोमिन की मेराज जो है वो नमाज है। सुभान अल्लाह। तो ये जो मुसल्ला है, ये तसव्वुर करें कि ये अल्लाह ताला ने हमें ये सवारी दी है कि मेरे बंदे इस पे खड़ा हो जा और मुझसे मुलाकात कर। क्योंकि कुरान में बताया गया है वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। सुभान अल्लाह। तो जब भी मुसल्ले पे आए तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा बुराक हमें दिया है कि ज़मीन पे रहने वाला इंसान अपने रब के रूबरू हो जाता है, अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह से सरगोशियाँ करना शुरू कर देता है। और अगर वो रात का लम्हा हो तो फिर उस कुर्बतों का और उस लज्जतों का क्या कहना। अपने सारी मसले मसाइल हो वो इन लम्हात के लिए उठा के रखो। और अगर तहज्जुद गुजार बन जाओ या जब कभी आँख खुले तो पढ़ लो, तो ये सफ़र मेराज को ज़रूर याद कर लेना। और उस वक्त अल्लाह से दुआएं करना कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी कुर्बतों के लज्जतें अता फरमा। अब क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, मतलब मस्जिद अक्सा पहुँचे। बुराक से उतरते हैं, सुभान अल्लाह। और फिर क्या करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को उस हल्के से बांध दिया, मतलब एक जगह थी वहाँ बांध दिया कि जिससे जो पहले वाले अंबिया थे वो वहाँ पर अपने सवारियों को बांधा करते थे। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर में उंगली से सुराख कर कर उस बुराक को बांध दिया। अल्लाह अकबर। और ये भी तो हो सकता है कि बुराक को बांधने के लिए इसलिए उंगली से सुराख किया गया कि जहाँ पर पहले अंबिया सवारी बांधा करते थे तो हो सकता है कि कई ज़माने की वजह से वो सुराख बंद हो गया हो। अल्लाह अकबर। अब होता है ये सफ़र मस्जिद अक्सा की तरफ, मतलब अभी तक आसमानों पर नहीं गए हैं। मक्का से लेके रात के चंद घड़ियों में, चंद लम्हों में, सोचो तो सही। और ये नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि इस सफ़र की शुरुआत देखो कि किस तरह से नमाज़ें पढ़ाई गई, कि मदीना में नमाज उतार के पढ़ाई गई, कोहे तूर के पास पढ़ाई गई, जिस शजर के पास से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की थी, जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे वहाँ पर नमाज पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब देखो यहाँ आ गए, वहाँ पर नमाज पढ़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब आ गए मस्जिद अक्सा के पास। नमाज की अहमियत को समझो जन्नत की शहजादियों, कि देखो मेराज का खूबसूरत लम्हा है, आसमानों को सजा दिया गया है, जन्नतों को आरास्ता कर दिया गया है, महबूब के मुलाकात का लम्हा है, लेकिन नमाज के जरिए करीब से करीब तर हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जब मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल होते हैं और फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं और जिब्राईल अमीन दोनों मस्जिद में दाखिल हुए और हम दोनों ने 2 रकात नमाज अदा की। देखिए नमाज का मकाम क्या है, ये नमाज किस बुलंदी की चीज़ है, ये नमाज कोई मामूली शय नहीं है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह से मुलाकात का वक्त शुरू होता है। अब देखो तो सही कि यहाँ पर इस मुबारक मौके पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात तहियतुल मस्जिद की नमाज अदा की, मतलब 2 रकात नमाज पहले जाने के साथ पहले पढ़ ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखा कि तमाम अंबिया इकराम बहुत ज़्यादा, मतलब जितने अंबिया इकराम आज तक आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक, जितने भी अंबिया आए वो सारे के सारे मस्जिद अक्सा में अल्लाह ताला ने देखो किस तरह से जमा फरमा दिए। सुभान अल्लाह। क्या शांति होगी, क्या नूर था होगा। सोचो इतने सारे अंबिया, इतने सारे नबी एक मस्जिद में, क्या मर्तबा है देखो मस्जिद अक्सा का भी, कि क्या मकाम रखती है वो मस्जिद भी, कि इतने सारे नबी इस मस्जिद में जमा हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खड़ा कर दिया। अब देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे सबसे आखिर में, लेकिन अल्लाह ने सारे नबियों की इमामत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाई। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और जब नमाज पढ़ाई तो सारे अंबिया उनकी इमामत में नमाज अदा की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में सारे नबियों ने नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह।
सोचो एक मंजर देखो। और कुछ एक रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पर फरिश्ते भी आसमान से नाजिल हो गए थे वहां पर, और मलाइका की भी इमामत कराई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या मंजर था होगा। तो हमें चाहिए कि हम भी नमाजों की बहुत पाबंदी करें, नवाफिल की पाबंदी करें, क्योंकि ये मेराज का वक्त है। क्योंकि हदीस शरीफ है ना कि नमाज मोमिन की मेराज है। अब देखो ये शबे मेराज का वक्त है, आसमानों की सैर का वक्त है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त है, खास हम कलाम होने का वक्त है, लेकिन नमाजें पढ़ाई जा रही है। सुभान अल्लाह। नमाज की अहमियत को जानो कि नमाज है क्या, ये हमारे ईमान को और मजबूत करती है। अब यहाँ पर से जब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई गई और वहाँ से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, तो अब देखो जब वहाँ से फारिग होकर मस्जिद से बाहर तशरीफ लाते हैं तो 3 प्याले आपके सामने पेश किए गए। कौन से 3 प्याले पेश किए गए? एक पानी का और एक दूध का और एक शराब का। मतलब जैसे ही वो बाहर आए मस्जिद से, अब आसमानों का सफर होने वाला है, लेकिन 3 प्याले पेश किए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार किया। जिब्राइल अमीन ने कहा कि जब दूध का प्याला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने दीन फितरत को इख्तियार किया है। अगर आप शराब को इख्तियार करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, और अगर आप पानी को इख्तियार करते तो आपकी उम्मत गर्क हो जाती। अल्लाह अकबर। और कुछ रिवायत में आता है कि शहद का प्याला भी पेश किया गया था, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से भी कुछ पिया। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ कि यहाँ से अब सफ़र होने वाला है आसमानों का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को अपनी कुर्बतों से नवाजे, हमें भी वो रूहानी एक अल्लाह ताला ऐसे सैर नसीब करे कि हम अपने रब के करीब से करीब तर होते जाएं। क्योंकि ये देखो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म के साथ बेदारी में, ख्वाब में नहीं कि सोए थे और हो गया, नहीं, बेदारी की हालत में जिस्म के साथ फरिश्तों के, देखो किस तरह से फरिश्ते घेरे हुए हैं, अंबिया को नमाज पढ़ाई। इसके बाद अब क्या हुआ कि जितने मलाइका भी आए थे ना, वो सब के सब अभी आसमान पे जा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक रिवायत में आता है कि बुराक के साथ सवार हुए थे, कि पर एक कुछ इसमें आता है कि बुराक को वहीं बांध दिया गया, और जन्नत की एक जमरुद और जबरजुद की एक सीढ़ी के जरिए आपने आसमान की तरफ सऊद फरमाया। मतलब जन्नत की बहुत ही हसीन और जमील और खूबसूरत सीढ़ी लाई गई। ये बहुत मुबारक सफर शुरू हो रहा है। देखो आप सोचो कि बुराक को वहां पर बांधा गया, और कुछ रिवायतों में मिलता है कि बुराक समेत उस सीढ़ी पर सवार हुए। ज्यादा रिवायतें ऐसी कि बुराक को वहां पर बांध दिया गया मस्जिद अक्सा की तरफ, और यहाँ पर वो एक ऐसी सीढ़ी लाई गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने इसके पहले इससे बेहतर सीढ़ी नहीं देखी थी। मतलब सोचो ये कैसी सीढ़ी थी होगी। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ कि अब वो सीढ़ी के जरिए आसमान पर तशरीफ ले जाने लगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या शान नवाजी थी, और हमें किस मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने हमें उम्मती बनाया है कि इसके पहले ये शान किसी को नसीब नहीं हुई कि वो अल्लाह ज़मीन पे जिंदा रहते हुए, बेदार रहते हुए अल्लाह से मुलाकात के लिए, मेराज के लिए आसमानों पर गए। सोचो ये कैसा सफ़र होगा, कैसा नूर होगा, कैसे फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। सोचो मक्के वालों ने कदर नहीं की, अबू जहल ने कदर नहीं की, ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्तकबाल के लिए फरिश्तों को ला दिया। कोई ईमान नहीं लाया, लेकिन मस्जिद अक्सा में नबियों के सामने, नबियों के आगे खड़ा रख के इमामत करवाई। पता क्या चला कि जब हम अल्लाह के लिए किसी मामले में गम उठाते हैं तो अल्लाह ताला हमें दूसरे सिमत से ही, मतलब यहाँ अगर लोग कदर नहीं करते तो अल्लाह ताला ऐसे जगह से कदर करवाते हैं कि किसी की अक्ल और गुमान में भी नहीं आ सकता। देखो अब यहाँ मक्के वाले क्या हैं कि बुरा भला कह रहे हैं, जान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताइफ वालों को भड़काया जा रहा है, ताइफ वाले उन पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सिर्फ हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा वहाँ पे कोई ईमान नहीं लाया। लेकिन यहाँ माहौल ही कुछ और है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया जा रहा है, मलाइका फौज दर फौज आ रहे हैं, बुर्राक सजा के लाया जा रहा है, अंबिया की इमामत करवाई जा रही है, जन्नत की सीढ़ी मंगाई जा रही है। अल्लाह अकबर।
सोचो कि जब कभी हम कहीं से टूटते हैं, जब किसी मसले में परेशान होते हैं और अगर अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत हो तो अल्लाह हमें ऐसे तरह से ऐसी जगह से बांध देते हैं, ऐसी जगह से बुलंदियां अता कर देते हैं, ऐसी जगह से हमारे लिए रास्ते बना देते हैं कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता। अभी कोई सोच सकता है मक्के वाले तो ख्वाब खरगोश में सोए हुए होंगे और मेरे रब का फैसला हो गया कि मेरे महबूब को बेदार करके लाओ, दिल को धोया जाए, आसमानों पर बुलाया जाए, ऐसी हसीन और जमील सीढ़ी लाई गई जन्नत से कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सीढ़ी पर सवार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे क्या होता है कि इस तरह अब आप आसमान अव्वल पर पहुंचे, आसमान अव्वल पर पहुंचे। कहाँ वो ताइफ का सफर कितनी तकलीफें दी गई, यहाँ अल्लाह ताला बता रहे ए महबूब आकर देखो तो सही कि आसमान का एक एक फरिश्ता आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आसमानों पर आपका कितना इस्तकबाल होता है, आसमानों पर आकर तो देखो आपका रब आपसे कितनी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाज़ा खुलवाया, आसमान दुनिया का मतलब जो एंड वाला यहाँ पे से जो आसमान दुनिया है, सातवां आसमान, तो पहला आसमान आसमान दुनिया के दरबार ने दरियाफ्त किया तुम्हारे साथ कौन है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ता पूछता है कि क्या उनके बुलाने का पैगाम भेजा गया है, मतलब उन्हें बुलाया गया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। तो फरिश्तों ने ये सुनकर कहा मरहबा मरहबा कहा और दरवाजा खोल दिया। क्या नूरानी मंजर था होगा, सोचो तो सही कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नूरानी सीढ़ी पर, जन्नत की सीढ़ी पर तशरीफ फरमा कर आसमानों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब आसमानों में दाखिल हुए तो देखते क्या है कि एक निहायत बुजुर्ग आदमी को देखा, मतलब बहुत ज्यादा बुजुर्ग ज़ईफ आदमी को। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। सोचो मुलाकात का मंजर क्या होगा ना कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर रहे हैं। अब वहां पर देखो अल्लाह की कुदरत भी देखो, यहाँ पर मस्जिद अक्सा में सारे नबियों को इमामत करवाई। अब यहाँ पर आए तो पहले आसमान पर, आसमान अव्वल पर जो आसमान दुनिया के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप इन्हें सलाम कीजिए, तो उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और कहा मरहबा बिल इब्न सालेह वन नबी सालेह। सुभान अल्लाह, इसका मतलब है मरहबा हो फर्जंद सालेह और नबी सालेह को, और आपके लिए दुआए खैर की आदम अलैहिस्सलाम ने। और उस वक्त आपने देखा कि कुछ सूरतें हजरत आदम की दाएं जानिब है, मतलब देखते क्या है कि सीधे जानिब कुछ सूरतें चेहरे नजर आ रहे हैं और कुछ चेहरे बाएं जानिब है। जब आदम अलैहिस्सलाम सीधी जानिब मतलब दाएं जानिब नजर डालते तो बहुत खुश हो जाते और हंसते भी हैं, और जब बाएं जानिब देखते हैं तो रोते भी हैं। तो ये मंजर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते हैं कि दाई जानिब उनकी नेक औलाद की सूरतें हैं, ये अस्हाब यमीन है मतलब जन्नत वाले हैं और उनको देखकर वो खुश हो जाते हैं, और बाएं जानिब औलाद बद हैं मतलब गुनहगार चेहरे हैं, ये अस्हाब शिमाल है मतलब अहलुन्नार मतलब जहन्नुमी लोग हैं, वो इनको देखकर रोते हैं। अल्लाह अकबर। मतलब एक रिवायत में इस तरह से भी आता है कि एक तरफ से खुशबू आती थी दाएं जानिब से और बाएं जानिब से बदबू आती थी। अल्लाह अकबर। अब दूसरे आसमानों पर तशरीफ ले जाया जा रहा है। एक मंजर अपने निगाहों के सामने लाओ तो सही मेरे बहनों, ये कैसा उरूज है, ये कैसी रात है। आज हमारी जिंदगियों में भी रातें आती हैं, हम भी कभी वुजू कर कर अल्लाह के हुजूर आए, अल्लाह के हुजूर दुआएं करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने अपने ऐसे शानदार महबूब का उम्मती बनाया, हमें नमाज जैसा तोहफा देने के लिए उन्हें जमीन से आसमान की तरफ बुलाया। अब वो तोहफा भी तो मिलने वाला है ना, लेकिन अब हमारा सफर कहाँ हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जा रहे हैं कि आसमान अव्वल हो गया, अब दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। इसी तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया, जो वहाँ का दरबान था उसने फिर से पूछा कि कौन है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस फरिश्ते ने फिर पूछा क्या बुलाए गए हैं, मतलब खुद से आए हैं या बुलाए गए हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा
कि हाँ बुलाए गए हैं। तो फरिश्ते ने फिर से कहा मरहबा मरहबा, क्या अच्छा आना, आ जाइए। अब यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है हज़रत याहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। दूसरे आसमान पर किससे मुलाकात होती है? हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। क्या अल्लाह की कुदरत है, कैसे अपने नबियों से मुलाकातें करवाई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आप याहया और ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो इन दोनों ने, हजरात ने, मतलब ये दोनों नबियों ने भी सलाम का जवाब दिया। इसके बाद तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। इसी तरह दरवाज़ा खुलवाया गया। अब वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं ना, ऐसे हसीन और जमील पैगंबर, इतने खूबसूरत पैगंबर जिनकी खूबसूरती के चर्चे थे। अल्लाह ने उनको ऐसा हुस्न दिया था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत हसीन थे कि इतना बड़ा हिस्सा अल्लाह ने उनको हुस्न का अता किया था। अब वहाँ से चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले जाते हैं। देखो गौर से सुनो, दुरूद पाक पढ़ते जाओ। अल्लाह करे कि हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हो जाए। देखो एक ऐसा मंजर है कि फरिश्ते ज़ियारतें कर रहे हैं। फरिश्ते क्या कर रहे हैं? ज़ियारतें कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों पर दीदार कर रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शान से बुलंद मकाम पर जाते जा रहे हैं। कैसी मुबारक रात थी, कैसा नूरानी मंजर था होगा, कैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या था रहे होगा कि मैं अपने रब से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह ने अपने इन नबी से मुलाकात करवाई। फिर पांचवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद छठे आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये आप लोगों को पता होगा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर नमाज़ें कम करवाई। तो ये कितवें आसमान पे थे? छठे आसमान पर थे। और उसके बाद में सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और ये देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत मामूर से पुष्ट लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर क्या है? मतलब वहाँ पर जो एकदम लास्ट वाला आसमान था उसमें क्या था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद, जहाँ हम अब बकरे ईद के वक्त जब दुम्बा ज़बा करते हैं, बकरे ज़बा करते हैं, तो क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए के गए थे। अब देखो यहाँ पर उनकी मुलाकात खलीलुल्लाह से होती है और वहाँ भी वो बैतुल मामूर, मतलब जो आसमान पर किबला मलाइका है, फरिश्तों का किबला है, मतलब जो ठीक अभी काबतुल्लाह है ना, जहाँ पे बैतुल्लाह, उसके पूरा ऊपर सेंटर में ठीक वहाँ वहीं पर है। मतलब अगर जानना हो तो ऐसा है कि अगर वहाँ से कोई चीज़ गिर जाए बैतुल मामूर से तो बैतुल्लाह पे गिरेगी। ऐसा नूरानी मंदिर सोचो, बैतुल्लाह के ऊपर ही सेंटर पे बनाया गया है बैतुल मामूर और वहाँ पर 70,000 फरिश्ते तवाफ करते होते हैं। अल्लाह अकबर, कितने अल्लाह ने बनाए फरिश्ते, देखो सोचो तो सही। और जो एक बार तवाफ करता है उसकी बारी फिर नहीं आती, वो अल्लाह को मनाने के लिए घूमते रहते हैं। और वहाँ पर टेक लगा कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके वालिद हैं, इनको सलाम कीजिए, मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। और इसके बाद मतलब ये आसमानों का जब सफ़र हो रहा है ना, तो इसके बाद क्या होता है, सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। जो सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा का मकाम आपने सुना होगा ना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा के आगे नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर ऐसी तजल्लियात होती है जो तजल्लियात जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बालों पर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं पर ठहर गए। लेकिन अब इसका मकाम क्या बताया जा रहा है कि सातों आसमानों के बाद सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जो ये क्या है सिदरतुल मुंतहा, तो जान लीजिए वो सातवें आसमान पर एक बेरी का दरख्त है। अब ये दुनियाई बेरी नहीं, वो सोचो वो बेरी कैसी होगी और क्या उसकी हकीकत होगी, उसको हम और तुम नहीं जान सकते। ये कैसा नूरानी पेड़ होगा, वो कैसा दरख्त होगा जहां पर इंतहा है मखलूक की, कोई जा नहीं सकता
सकता, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिदरा के आगे बुलाया कि जिब्राइल भी पीछे और नीचे रह गए। क्या मकाम है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह का करोड़ा करोड़ शुक्र है, अल्लाह हर सांस पर शुक्र है कि तूने तेरे महबूब का उम्मती बनाया और हम तक ये मुलाकातें पहुंचाई कि हम इसकी लज्जत को महसूस करते हैं और हमें नमाज अता फरमाई। अब क्या होता है कि वो बेड़ी का एक दरख्त है जो ज़मीन से जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर मुंतहा हो जाती है, मतलब वहाँ वहीं पर रह जाती है और फिर ऊपर को उठाई जाती है। मलाए आला से जो चीज़ उतरती है, मतलब ऊपर से जो चीज़ आती है वो भी सिदरतुल मुंतहा पर आकर ठहर जाती है, फिर नीचे उतरती है। इसलिए इसका नाम क्या है? सिदरतुल मुंतहा। इस मकाम पर सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे ना तो वहां पर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन को उनकी असली सूरत में देखा। क्या तजल्लियात थी होंगी। जानते होंगे ना आपके जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर है और इतने बड़े बड़े पंख है। अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बहुत खूबसूरत बनाया है। इतने बड़े बड़े पंख है कि अगर एक पंख खोल दे तो मशरिक तक पहुंच जाए, दूसरा खोल दे तो मगरिब तक पहुंच जाए। सोचो ये कैसे पंख होंगे और कितनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है ये। वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा और फरमाया जाता है कि वहाँ पे अजीब व गरीब अनवारात, मतलब अजीब व गरीब नूर जो इंसान सोच भी नहीं सकता, तजल्लियात मतलब रोशनी और नूर न जाने कैसे, इसका मुशाहिदा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और जो सिदरतुल मुंतहा का मकाम था ना वहाँ पर बेशुमार फरिश्ते घिरे हुए थे, बेपनाह फरिश्ते उस मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे। और सोने के पतंगे, मतलब वो क्या चीज़ थी, अल्लाह अलम क्या जाने क्या चीज़ थी। सोने के पतंगे मतलब अगर एक कोई लाइट देखे तो किस तरह से पतंगे उसकी इर्द गिर्द चलते फिरते हैं ना, जैसे छोटे छोटे पतंगे होते हैं। तो वो सोचो वो सिदरा का मकाम है, सिदरतुल मुंतहा है और वहां पर सोने के पतंगे उसको घेरे हुए थे और परवाने देखे जो सिदरतुल मुंतहा को घेरे हुए थे। मतलब सोने के पतंगे और परवाने सोने के बने हुए चमक रहे थे, नूर थी, तजल्लियात थी, रंगीनियां थी, अजीब करीब अनवार। सुभान अल्लाह, क्या मुशाहिदा किया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वहीं से सिदरतुल मुंतहा के बहुत करीब जन्नत है, तो वहीं से जन्नत की सैर कराई गई। अल्लाह अकबर, जन्नत को खोल दिया गया, दिखाया गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या मुबारक मकाम है, कैसे वो लम्हात होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल देखो, कल मुबारक धोकर ये सारे सफ़र पर ले जाया गया। हम भी जब नमाज के लिए आए तो हम भी एक अल्लाह ताला के कुर्ब का सफ़र तय करते हैं ना, तो हम भी अपने दिल को धोकर अच्छी तरह से पाक कर जब हम वुज़ू करते हैं ना तो आज़ाद धुल जाते हैं। तो इसको अपने अंदर से भी धुल कर मुसल्ले पे आके खड़े हो जाएं कि हम भी अपने रब से मुलाकात का सफ़र कर रहे होते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम अपने आँखों से देख लें तो बेशुमार खरबों फरिश्ते नमाजी को घेरे हुए होते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसके बाद मैं इंशाल्लाह इसके आगे बताऊंगी, लेकिन वहाँ पर से जन्नत बताई गई, उसके बाद जहन्नुम दिखाई गई, जहन्नुम आपको दिखलाई गई। सुभान अल्लाह, मतलब जन्नत की भी सैर हुई, जहन्नुम को दिखाया गया। और सिदरतुल मुंतहा के आगे जब जन्नत दिखाई गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में गुंबद मोतियों के थे और मिट्टी उसकी मुश्क की थी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यहाँ जन्नतें बताई जा रही है, जहन्नुम बताया जा रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज की रात को जहन्नुम के दारोगा को देखा जिसका नाम मालिक है, मतलब वहाँ का दारोगा पहरेदार है जो जहन्नुम का, उनके चेहरे पे कोई खुशी के आसार नहीं और कोई मुस्कुराहट नहीं। सोचो आज हम यहाँ पर खिलखिला कर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन सोचो अगर हमारे गुनाह ज्यादा हो गए तो सोचो जहन्नुम कैसी हैबतनाक होगी कि जिसका दारोगा कभी मुस्कुराया नहीं। अल्लाह अकबर। तो या मैं ये स्टॉप यहाँ तक ही करती हूँ, लेकिन ये सोचने का मकाम है कि रात को अल्लाह ताला ने चुना मेराज के लिए, सातों आसमान का सफ़र कराया गया और बार बार नमाज पढ़ाई गई, अम्बिया की इमामत कराई गई। पता क्या चला कि कामयाबी चाहते हो तो नमाज में आ जाओ, कामयाबी चाहते हो तो अपने इस पेशानी को मिट्टी पर रख दो, सजदे में झुका दो, अपने इस पेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کے آگے جھکا دو، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کے بعد اللہ اپنے بندوں کو وہ معراج عطا کرتے ہیں، وہ قرب عطا کرتے ہیں، وہ بلندیاں عطا کرتے ہیں کہ جس کے بعد اس بندے کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نماز کے امپورٹنٹ کو سمجھو، کیونکہ اس کے بعد جو آگے آئیں گے وہ تحفے کیا کیا ملے، وہ 3 قیمتی تحفے معراج میں ملے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، کس طرح سے اللہ سے باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا نیکسٹ منڈے کو۔ تو آپ لوگ اسے ضرور جوائن کیجئے، اور جو لنک گروپ میں آئیں گی وہ آپ اور بہنوں کو بھی شیئر کیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قرب عطا فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ کروڑ درود بھیجے۔ جتنے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، پیڑ پودے اگتے رہیں گے، بارشیں ہوتی رہیں گی، سمندر لہریں مارتے رہیں گے، اللہ اس کے ہر قطرے کے برابر، ہر پتے کے برابر، ہر انسان کی تعداد کے برابر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور سلام نازل فرماتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ سوچو کہ آسمانوں کا بھی سفر ہے تو نماز پڑھائی جا رہی ہے، براق پر سوار ہونے کا وقت ہے تو دل کو دھویا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نمازوں کو خوب پابندی سے پڑھیں، خوب خوبصورتی سے پڑھیں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ معراج کے جو 3 تحفے ہیں انشاءاللہ میں نیکسٹ سیشن میں بتاؤں گی۔ تو آپ لوگ جب تک جو بھی آپ لوگوں نے سنا آپ اپنے اپنوں کو بتائیے، اور اس شب معراج کے تذکرے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جتنے لوگ بیمار ہیں، ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ کسی کو جو بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اور جو جس نیت کو، جس دعا کو لے کے یہاں جڑا ہے، میرے مولا تماموں کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔